دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاۃ علی من ارسلہ بالہدی بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء إليك وسعادوا في مارج الحق بالتحقيق وسعادوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے ناچیز اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس آیت کریمہ میں روشنی ڈالنے سے پیشتر ایک متوازی لگا کر بارگاہ رسالت باب ہادی العالم کونین کی زینت غم گسار امت جانی عالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں چارہ سات درد منداں فخر رسولہ مالک حق قاسمہ ہم نازش ہر دو جہاں سرکار ایواں سیاہ لامکاں نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیون ہارے دائی حلیمہ کے جگر پارے سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے رب کے دلارے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا واقع تاجدار عرب عجم مالک حل حرم صاحب الجود والکرم منبع جود عطا مالک حوض کوثر محبوب رب اکبر جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عشق میں ڈوب کر محبت میں مچل کر تصور میں گنبد خضرا کو رکھ کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیش کر نعت و منقبت کا سلسلہ چل رہا تھا میں ہمارے سامنے آصف بھائی تھے، آصف اختر امجد بھائی اور یہ بچیاں پڑھ رہی تھی۔ بہت اچھا لگا کہ نہیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں نعت مصطفیٰ پڑھنے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہیں۔ الحمدللہ بچیاں اچھے انداز میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی تھی، اور یہ ہمارے مداح رسول امجد بھائی یہ بھی جو ہے بارگاہ مصطفیٰ میں جو ہے خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، گویا کہ نعت پاک پیش کر کے خراج عقیدت پیش کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے تھے۔ یہی ایمان کا حصہ ہے، یہی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعت کون گنگناتا ہے؟ نعت وہ گنگناتا ہے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کیونکہ نعت گنگنانے کے لیے ان سے پوچھو، الفاظ کو دل سے نکالنا ہوتا ہے، اس کا ایک دھن ہوتا ہے، اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ نعت گنگنانے کے لیے جذبہ ہوتا ہے، جذبہ خیر ہوتا ہے، اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وجدانی کیفیت جسم میں طاری ہوتی ہے۔ تصور ہوتا ہے کہ ہم گنبد خضرا کو سامنے رکھ کر کے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہر پڑھنے والے کا پوچھو، سامنے پڑھنے والے کا تصور ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کو تصور میں رکھ کر اور مصطفیٰ جان رحمت کو نگاہوں میں بسا کر پھر نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا ہے۔ آواز بڑھا دو نا، آواز تھوڑا سا کم ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں نا؟ ہاں، تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غلامی کی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ غلامی کی پہچان ہے، اور یہی غلامی ہمیں جنت میں لے کے جائے۔
یہ غلامی، اسی غلامی کے سکتے میں بخشے جائیں گے۔ ہماری بخشش کا دار و مدار رسول کونین کی غلامی پر ہے، سرکار کی غلامی پر ہے۔ آئیے دو چار مصرے ہم بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ تضمین کے اشعار ہیں، یہ کلام ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اسی نے اس کلام پر کسی نے تضمین لکھی ہے، اشعار اچھے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ فرماتے ہیں وہ نور مجسم جب مسکرا دیے، وہ نور مجسم جب مسکرا دیے ہیں، سہرے زندگی میں گلشن کھلا دیے۔ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں بھی کہیں میرا آقا نے جب مسکرا دیا تو سمجھ جاؤ کہ روشنی ہو، سرکار نے مسکرا دیا روشنی پھیل گئی۔ فرماتے ہیں وہ نور مجسم جب مسکرا دیے ہیں، سہرے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، اور ان کی عطا نے، اور سرکار کی عطا کا کیا کہنا ہے یار، بولو حضور کی عطا کی مثال ہے کائنات میں؟ کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر میری تقریر میں اس لیے شعر میں ہو جائے، مگر میں کچھ سوچ کے آیا ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ شعر میں حضور کی عطا کیسے ہے یار؟ تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کو امام بخاری امام مسلم شہر نے کوٹ کیا ہے کہ قد اوتی دو مفاتیحا خزائن الارض، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ کون فرما؟ سرکار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہے۔ تو اس کے بعد خزانوں کی کنجی ہو، مالک کون ہوگا خزانے کا؟ وہ کون مالک ہوگا؟ تبھی تو کیا ان کے پاس میں اللہ کو نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مفہوم حدیث ہے، کسی بندے کو نبی کے اذن کے بغیر یا نبی کے در مقدس کے بغیر کوئی نعمت نہیں ملتی ہے۔ جو بھی ملتی ہے سرکار کے وسیلے سے، کسی کو بھی ہو، کوئی بھی ہو، چاہنا ہو یا خیر ہو، ہم کو آپ انصاف کرواتے ہیں۔ ورنہ ہو جہاں موٹی ہوئی نوانا پاتی رب عطا کرنے والا ہے کہ پوری کائنات کو دینے والا ربطہ کرنے والا ہے، میں پوری کائنات کو دینے والا ہوں۔ ابھی دار ملت اسلامیہ تو سرکار کی عطا کو کہاں کہاں دیکھو گے، حضور کی بخشش کو کہاں کہاں دیکھو گے، حضور کے انعام و اکرام کو کہاں کہاں دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت حضور کی عطا، حضرت ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خادم تھے۔ چاہتے بولو سرکار کے خادم تھے، ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک نبی کونین کی خدمت کی۔ سبحان اللہ، کتنے برس گئے؟ 10 برس تک تمہیں کونین کی خدمت کی۔ مگر پوچھو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم نے نبی کونین کی خدمت 10 برس کر دی ہے، تمہارا بتاؤ پورے کونین کو تم نے کیسا پایا؟ تو وہ فرماتے میرے آقا کہتے تھے مرنے سے پہلے لوگوں سے وصیت کرتے ہیں، لوگوں اگر میں انتقال کر جاؤں میدان جوانی کے بعد یہ عطا میرے کفن کے سائڈ میں رکھ دینا، اور یہ منہ مبارک میری دانتوں میں، میرے دانتوں میں، میری زبان میں رکھ دینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسا ہے نا، ایسا سمجھ کے ڈنڈا کفن کے ساتھ میں رکھ دینا اور منہ مبارک میری زبان پر رکھ دینا۔ لوگوں نے کہا یہ منہ مبارک اس سے کیا ہوگا، اس ڈنڈے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب میں آتے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ڈنڈا کسی اور کا نہیں ہے، رسول کونین کا ہے، انہوں نے مجھے آقا فرمایا ہے اور مجھے یقین ہے اسی آقا کے سچے ڈنڈا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ہمیں یقین ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول ہے۔ اور ان کی نماز کیسی تھی ہم جب ہے بولو، وہ تو رات دن عبادت کرنے والے لوگ تھے، نہیں تھے؟ عبادت کرنے والے لوگ تھے تو ان کو تو اپنے اعمال پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے تقویٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنی پرہیزگاری پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے اچھا نیکیوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، اعمال پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ فرماتے لوگوں
مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، مگر میرے آقا نے جو عطا فرمایا ہے، میرے آقا نے جو منہ مبارک مجھے عطا فرمایا ہے، مجھے اس پر یقین ہے کہ اللہ اس منہ مبارک کے صدقے میں اور اس عطے مقدس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب بولو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ بولو کس کا ہے؟ صحابی رسول کا۔ اور کون صحابی رسول؟ ایوب بھائی، وہ جنہوں نے 10 برس تک آقا، موبائل چالو کر دو، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ اعتقاد، ان کی یہ فکر، ان کی یہ سوچ ہے۔ بولو ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ وہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانے کتنے حدیثوں کے راوی ہیں اللہ پر کبیرہ، وہ فرماتے ہیں مجھے اپنے تقویٰ پر، مجھے اپنی پرہیزگاری پر، مجھے اپنی عبادت و ریاضت پر، مجھے اپنی بندگی پر کسی پر نہ ناد ہے نہ بھروسہ ہے۔ اگر ہے تو رسول کونین کے عصا پر بھروسہ ہے، اگر ہے تو رسول کونین کے منہ مبارک پر بھروسہ ہے، اور اگر نام ہے تو محمد عربی کی غلامی پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لوگ کیسا عقیدہ دیکھے گئے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، ڈائریکٹ رب سے مانگ لو۔ میں ڈائریکٹ والوں سے کہنا چاہتا ہوں تم کو کون پوچھے تمہاری حیثیت کیا؟ جنہوں نے دیکھا وہ ڈائریکٹ رب سے نہیں مانگے، بلکہ مانگ کہاں رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، مانگ کہاں رہے ہیں سرور کونین سے، مانگ کہاں رہے ہیں امام الانبیاء سے، مانگ کس سے رہے ہیں نبی آخر الزمان سے، مانگ کس سے رہے ہیں آمنہ کے لال سے، مانگ کس سے رہے ہیں نبیوں کے سرور سے، مانگ کس سے رہے ہیں بے کسوں کے کف سے، مانگ کس سے رہے ہیں بے بسوں کے بس سے، مانگ کس سے رہے ہیں اللہ کے حبیب سے مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سے مانگ رہے ہیں۔ مانگ کر کے انہوں نے عقیدہ دیا، انہوں نے ہمیں یہ سوچ دیا ہے، فکر دیا ہے کہ اے رسول کونین کے غلاموں، اے رسول اللہ کے دیوانوں، اے رسول اللہ کے شہدائیوں، جب بھی مانگنا تو حضور سے مانگنا، اور حضور سے مانگو گے تو تم کو تمہاری اوقات سے زیادہ ملے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کو تمہاری اوقات سے زیادہ ملے گا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل بنا تیرا دے دال صدقہ نور کا، تیرا دے دال صدقہ نور کا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ ہم تو مالک کی سمجھتے ہیں نا بھیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محب میں تیرا میرا۔ وہاں تیرے میرے کی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں تو دیکھا جا رہا ہے کہ مانگنے والے نے دامن پھیلایا ہے کہ نہیں۔ یہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے خادم تھے، رسول کونین کی خدمت کیا کرتے تھے انس بن مالک کے جیسے، ایک دن تہجد کے لیے 1 لوٹا پانی لے کے آئے، کیا لے کے آئے بولو؟ 1 لوٹا پانی لے کے آیا۔ اگر 1 لوٹا پانی کہا وضو کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، اور نبی کونین نے پانی کا لوٹا دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں وضو بعد میں کروں گا۔ ربیعہ بن کعب اسلمی مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل یا ربیعہ، ہے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب سوال میں کتنی گہرائی ہے؟ امجد بھائی آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ ایوب بھائی، باپو آپ، کوئی کسی کو کیسے؟ میرا آقا فرماتا ہے سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، جو چاہیے وہ لے لے۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہے؟ میرا آقا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ مالک و مختار نہ ہوتے تو ربیعہ سے کہتے کہ جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، جو جی میں آئے، جو طبیعت میں آئے، جو مرضی میں آئے، جو تمہاری چاہت میں آئے، جو دل میں آئے، جو نیت میں آئے، جو سوچ میں آئے وہ مانگ، میں عطا کروں گا، دوں گا۔
बोलो मतलब सवाल है कि नहीं है? अब अगर हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते या रसूल अल्लाह हमें बादशाह चाहिए, मेरे आका अता फरमाते क्यों? इसलिए नबी वादे के पक्के होते हैं। क्या होते हैं? बोलो, वादे के पक्के होते हैं, सादिकुल वाद होते हैं, वादे के सच्चे होते हैं। नबी किसी से झूठा वादा नहीं कहा, बोलो नहीं करते हैं, बल्कि नबी आते ही हैं वादे को पक्का करने के लिए। नबी का काम ही वही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बुराइयों का खात्मा करने के लिए नबी मबूस किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सवाल की गहराई देखिए। हजरत रबिया कहते दौलत चाहिए, सरकार को अता कर रखा है, करना ही पड़ता। हजरत रबिया कहते ताज चाहिए दुनिया का, सरकार को देना होता। यानी जो मांगते, जो जी में आता, वो हजरत रबिया मांगते सरकार को देना होता। बोलो देना होता कि नहीं होता? क्यों? इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया सल या रबिया मांग जो जी में आए। बोलो इख्तियार है कि नहीं है? अब अगर कोई कहे कल उटंगा पजामा वाला कि नबी को इख्तियार नहीं है, समझे गिरेबान थाम लेना और ये हदीस पाक पेश कर देना कि हजरत रबिया से सरकार ने क्या कहा था? मांग जो मांगना चाहता है, मांग जो मांगना चाहता है। मगर हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी की क्या है, नबी की बारगाह के सोहबत याफ्ता थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चालाक थे, होशियार थे कि दौलत मांगूंगा, माल मांगूंगा, इज्जत मांगूंगा, आबरू मांगूंगा और कोई चीज मांगूंगा वो चीज मिल जाएगी। मगर बड़े होशियार थे। अल्लाह पर कबीरा क्या अर्ज करते हैं हदीस पाक में जुमला मौजूद है। साहिब मुश्काल हदीस पाक को नकल फरमाते हैं, जब मेरे आका ने फरमाया मांग रबिया क्या मांगता है, अर्ज करने लगे बल मुराफक़तका फी जन्ना, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपकी संगत को मांग रहा। कहा जन्नत में आपकी सोहबत को मांग रहा हूँ, संगत को मांग रहा हूँ, रफाकत को मांग रहा हूँ, जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। जब साहबा ने जुमला सुना, साहबा कहने लगे रबिया तुमने क्या मांग लिया है, तुम्हें मालूम नहीं? कहा जन्नत में मेरे आका का दर्जा बहुत बुलंद वाला होगा, वहां कोई नबी कोई रसूल पहुंच नहीं सकता। तू वहां कैसे पहुंचेगा? तुमने वहां के ताल्लुक से सवाल कैसे कर लिया? ऐसे नहीं, कैसा सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि तुमको अगर मेरे आका ने मांगने की क्या है, मांगने की गुंजाइश रखी थी, मांगने के लिए कहा था, तो तुमको जन्नत मांग लेना चाहिए था। वो महल नहीं मांगना चाहिए जो मेरे आका के लिए मखसूस है, वो नहीं मांगना चाहिए। जन्नत मांग लेते। और तुमने तो सवाल ही ऐसा किया है कि या रसूलल्लाह जन्नत में आपकी संगत को मांग रहा है, आपकी सोहबत को मांग रहा है, आपकी रफाकत को मांग रहा है। बोलो फरमाइश बड़ी है या नहीं? ख्वाहिश बड़ी है या नहीं? जन्नत का सवाल करते, जन्नत में 100 दर्जे होंगे। कितने दर्जे होंगे अमजद भाई? 100 दर्जे होंगे और सबसे ऊंचा दर्जा मेरे आका का होगा। मेरे आका का सबसे ऊंचा दर्जा होगा। क्यों? इसलिए जन्नत बनी ही है नबी के लिए। डॉक्टर इकबाल नहीं कहते हैं ताज्जुब तो यह है कि फिरदौस आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत बनाने वाला परवरदिगार, तैयार करने वाला परवरदिगार आलम, मगर उस जन्नत को आबाद मेरे आका फरमा रहे हैं। उस जन्नत को क्या, उस जन्नत के अंदर लोगों को मेरे आका बसा रहे हैं। इसलिए हदीस पाक में आया है, सबसे मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। सुभान अल्लाह, कहा मैं खटखटाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं मेरे साथ गरीब मुसलमान होंगे। कौन होंगे? गरीब मुसलमान होंगे। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं एक गरीब इंसान जो आका पर ईमान रखता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, उनकी मोहब्बत के दिए को अपने सीने में रोशन रखा है और कभी नाक गुनगुनाता है, कभी सलाम पढ़ता है, कभी दुरूद पाक पढ़ता है, दुनिया में क्या गुलामी का सबूत देता है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं वो गरीब इंसान एक अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। हम गरीब अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में दाखिला पहले होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं?
अबे वो तो सरकार की बात है यार। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से मौलाना जमीलुर रहमान कादरी फरमाते हैं, रोकते क्यों हो फरिश्तों मुझे जन्नत में जाने से, रोकते क्यों हो फरिश्तों मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में किसका है, दामन गौसे आजम का। तो गौसे आजम के दामन का हाल ये है, फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, कि हमको मत देख, वो देख अब्दुल कादिर जिलानी जा रहे हैं, वो देख शहंशाह बगदाद जा रहे हैं, वो देख सुल्तान औलिया जा रहे हैं, वो देख वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी जा रहे हैं, गौसे आजम जा रहे हैं। जाने वाले को देख, ले जाने वाले का, ले जाने वाले को देख, उनके पीछे जाने वाले को मत देख। बोलो होगा कि नहीं होगा? अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी या अली या हमें क्या देख रहे हो यार, हमें क्यों रोक रहे हो यार? वो देखो हम उनकी मायत में जा रहे हैं, जो वलियों के इमाम है, जो मीरे पीरा है, पीरे पीरा है, गौसे है, गौसे झील का, गौसे झीला है, उनको देखो, उस ले जाने वाले को देखो। हमसे ना पूछो, जाओ वहां पूछो, जाओ वहां पूछो, उनसे पूछो, हमको क्या पूछ रहे हो? इसलिए जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, रोकते क्यों हो फरिश्तों जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में किसका है, दामन गौसे आजम का, दीदान मिल्लत इस्लामिया। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपकी सोहबत को मांग रहा हूँ, आपकी संगत को मांग रहा हूँ, आपकी मायत को मांग रहा हूँ, आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। साहबा ने कहा कि तुमने जो चीज मांगी है, जो चीज मांगी है वो तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों? इसलिए कि जन्नत के जिस महल में मेरे आका होंगे वहां किसी की रसाई नहीं होगी, किसी की पहुंच नहीं होगी, तन्हे तन्हा जन्नत के उस दर्जे में मेरे आका आमना के लाल होंगे। तुम्हारी क्या है? तुम्हारी पहुंच वहां नहीं होगी, तुम्हारी रसाई नहीं होगी। पलट करके हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया, ए लोगों, मेरे मांगने का मतलब वो नहीं है कि सरकार के साथ में उसका दर्जे में रहूंगा। मांगने का मतलब यह है कि मेरे आका जन्नत के जिस दर्जे में रहेंगे वो आका बन के रहेंगे और मैं दुनिया की तरह खादिम बन के रहूंगा। यह है मांगने का मतलब। मेरे आका ने अता फरमा दी। हेलो, चादर, यमनी चादर किसी ने गिफ्ट में सरकार को अता फरमाई थी यार। लुंगी कह लो, चादर कह लो, जो भी कह लो, गिफ्ट में अता फरमाई थी। एक साहबी आए और चादर की है, चादर सरकार की, चादर पर जब नजर पड़ी सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह मुझे ये अता फरमा दीजिए, मुझे ये अता फरमा दी। मैंने कहा कि हुजूर की अता को कहां कहां देखोगे? हदीस है पाक अल्हम्दुलिल्लाह क्या है बोलो, बहुत सारी है। उस साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह ये चादर में अता फरमा दीजिए। दूसरे साहबी ने जब कहा, इस साहबी के कहा सवाल को सुना, फौरन कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती है? अभी अभी किसी ने गिफ्ट में वो चादर शरीफ सरकार को दी है और तुम उसी चादर का सवाल करते हो, वही चादर मांगते हो, वो चादर तुमको नहीं मांगना चाहिए था। तो इस मांगने वाले कहा, साहबी ने कहा, सामने वाला साहबी सुनो, मैं इस्तेमाल करने के लिए नहीं मांग रहा हूं, पहनने के लिए नहीं मांग रहा हूं, यूज करने के लिए नहीं मांग रहा हूं, वो चादर मैंने सरकार से इसलिए मांगी है। और मैं क्या चादर सरकार अता करवा देंगे तो मैं अपने अहले खाना से, घर वालों से वसीयत करूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो कोई दूसरा कफन ना देना, सरकार की सी चादर में मुझे लपेट के कब्र के हवाले कर देना। सरकार किसी चादर में हमें लपेट के कब्र के हवाले कर देना। क्या क्यों? का सरकार की चादर जब मेरे लिए कफन बनेगी ना, मुझे यकीन है इस चादर के सदके में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह हमें बख्श देगा। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, तो नबी की अता को कहां कहां देखोगे? मैं अर्ज कर रहा था, उनकी अता ने मुफलिस को सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने मेहरो जगमगा दिए हैं। आज जो सूरज में चमक देख रहे हो, चांद में चमक देख रहे हो, सितारों में चमक देख रहे हो, दुनिया कायनात में चमक देख रहे हो, ये रोशनी देख रहे हो, ये रोशनी किसी और की नहीं है, आमना के लाल की रोशनी है। आमना के लाल ने सूरज को भी रोशनी अता किया है, चांद को भी रोशनी अता किया है, पूरी कायनात को मेरे आका ने अपने नूर से, अपनी रोशनी से मुदल्ला फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए-मिलादुन नबी,
तभी तो कहा है इमाम इश्क मोहब्बत सैयदना सरकार आला हजरत अलैहि रहमत रिदवान फरमाते हैं, चांद और सूरज जो है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खैरात मांगते हैं, जबी की खैरात मांगते हैं, रोशनी की खैरात मांगते हैं। इसलिए शायर ने कहा है क्या, उनकी अता ने मुफलिस को सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने मेहरों जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने गुंचे खिला दिए हैं। अभी दाने मिल्लत इस्लामिया तो नार्ज कर रहा था, नबी कौनैन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कहां देखोगे? हलीमा सा चलिए वही कल जहां से छोड़ा था, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार को लेके जा रही थी। सरकार की उम्र शरीफ 7 साल थी, 7 साल की उम्र शरीफ सरकार को लेके जा रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब लेके जा रही थी तो क्या हुआ, तो जगह तो ऐसा हुआ हलीमा सादिया आगे निकल गई और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीछे रह गए। क्या रह गए बोलो? पीछे रह गए। हलीमा सादिया आगे निकल गई और जब कहा पीछे हलीमा सादिया पहुंच गई, अब कहा हलीमा सादिया ने जब पलट के देखा तो उनके साथ नबी कौनैन नहीं है, रहमत वाले नबी नहीं है, ताजदारे अरब अजम नहीं है, रसूल कौनो मका नहीं है। हलीमा सादिया परेशान हो गई, दूसरे की अमानत थी, ये अमानत कहाँ चली गई, ये बच्चा कहाँ खो गया, कहाँ चला गया। अब मैं वहां जाकर के जो है बच्चे के परिवार को, उनकी फैमिली को, उनके लोगों को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगी, हमारे पास क्या जवाब बनेगा। हैरान परेशान थी। अल्लाह पर कबीरा। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रास्ते से टहलते हुए आ रहे थे। उधर से अबू जहल जो है ऊँटनी पर सवार होकर के आ रहा था। जब अबू जहल ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कह देखा, अपनी सवारी को रोका, अपनी ऊँटनी को रुका और नबी कौनैन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो है अपनी ऊँटनी पे, अपनी पीठ के पीछे बिठा लिया, सवार कर लिया। और जब अपने पीठ के पीछे बिठाया तो ऊँटनी ने चलना बंद कर दिया। ऊँटनी चलती नहीं है, ठहर गई, रुक गई। अब ये मार रहा है, हाँक रहा है, पीट रहा है, मगर ऊँटनी आगे जाने को तैयार ही नहीं है, आगे जाने को तैयार ही नहीं है। ये बंदा परेशान हो गया कि मैं तो बहुत दूर का सफर तय करके यहाँ तक आया, ऊँटनी जा रही थी, सवारी जा रही थी, चल रही थी, मगर यहाँ क्यों ठहर गई, क्यों रुक गई, क्यों नहीं जा रही है। उनकी अक्ल ने फैसला किया, हो ना हो इस बच्चे की करामत है, हो ना हो इसकी करामत है। अल्लाह पर कबीरा। जी सरकार को अपनी कहा, अपने आगे बिठाया। कहाँ बिठाया बोलो? आगे बिठाया। ऊँटनी चलने लगी तो गोया कि उस जानवर ने भी अबू जहल से कहा था, अबू जहल तुम इनके मकाम को नहीं जानते हो, हम इनके मकाम मनसब को जानते हैं, हम इनके मकाम को जानते हैं, इनका मकाम बुलंद वाला है। अरे ये सदाए दो जहां है, इनके आगे चलना ब्याज भी है। मगर उस खबीस ने कोई भी नहीं माना, सबक हासिल ना किया, इबरत हासिल ना किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार को लेकर के अबू जहल गया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर गए। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी सरकार को कहा, देखा हलीमा सादिया कहा खुश हो गई, कहा खोज न हो, कम से कम अमानत तो मिल गई। उस अमानत को या नबी कौनैन को, उनके परिवार को सौंप कर हलीमा सादिया चली आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 साल है। कितने साल है? 12 साल है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किफालत, उनका खर्च, उनका बोझ, खाने पीने का इंतजाम उनके चाचा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अबू तालिब कर रहे थे, उनके चाचा कर रहे थे। उन्हीं के यहाँ वो रहते थे अपने चाचा के साथ। 12 साल की उम्र में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुल्क शाम के सफर में तिजारत के लिए जा रहे हैं, धंधे के लिए जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें कहीं यूं ही नहीं छोड़ा है, बल्कि हर तरीका बताया है, माशियत का तरीका बताया है, रोजी हासिल करने का तरीका बताया है, तिजारत करने का तरीका बताया है, परिवार के साथ कैसे रहना है वो तरीका बताया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया पड़ोसी के साथ कैसे रहना है मेरे आका ने वो तरीका सब कुछ बता दिया है। हमें यूं ही नहीं छोड़ा है। वो कोई कहे किसी और का धर्म होगा जहां सारे तरीके नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम वो धर्म है जो जहां जीने के सारे तरीके मौजूद हैं। बोले है कि नहीं है? तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे हैं, 12 साल उम्र शरीफ है। और जब मुल्क शाम की मंडी में पहुंचे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ पहुंचे तो वहां एक जगह एक खानका थी। इस खानका में एक पादरी रहता था, तो है उस गिरजाघर में एक पादरी रहता था जिनका नाम बुहैरा राहिब था। वो पादरी रहता था और उसी खानका के करीब में एक पेड़ था, एक झाड़ी थी। जब ये कौनैन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चचा से अलग होकर
उस पेड़ के पास पहुंचे, और जो ही उस पेड़ के पास मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं, और उस पादरी ने जब देखा, उस पादरी ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस पेड़ के पास देखा, वह हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया कि इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के साए में आज तक क्या है, नबी के सिवा कोई इंसान आया ही नहीं है। जब भी कोई आए तो कहा कोई ना कोई नबी ही यहाँ आए हैं, नबी के अलावा आज तक इस पेड़ के नीचे कोई नहीं आया है। ये बच्चा हो ना हो, आखिरी नबी शायद यही क्या है, यही होने वाले हैं। अब उनका वो पादरी बोहेरा राहिब उनके चचा अबू तालिब के पास जाते हैं, कहा ये बच्चा कौन है? कहा मेरा भतीजा है, दुर्रे यतीम है, माँ भी इंतकाल कर गई है, बाप भी इंतकाल कर गया है, मैं इनकी किफालत करता हूँ, मैं इनकी परवरिश करता हूँ। कहा करीब आइए, और करीब आया, और करीब आने के बाद अब वो राहिब क्या कहता है? वो राहिब ये कहता है कि इस बच्चे के अंदर जो है नबी आखिर ज़मा की, यानी आखिरी नबी की निशानी देख रहा हूँ, अलामत देख रहा हूँ। कहा तुमको कैसे मालूम? कि हमने तौरेत में पढ़ा है, हमने इंजील में पढ़ा है कि जो नबी आखिर ज़मा होंगे वो इस पेड़ के नीचे आएंगे। आज वो इस पेड़ के नीचे आए हैं, ये इमामुल अंबिया है। और जब सरकार के करीब गया और जिसमें अतहत से कपड़ा हटाया तो मोहरे नबूवत को देखा। मोहरे नबूवत को देखने के बाद वो पादरी कहने लगा, ए मक्के का मुसाफिर अबू तालिब, कान खोल करके सुन ले, यही आखिरी नबी है। हमारी किताब तौरेत और इंजील ने जो अलामत बताई है, वो अलामत, वो निशानी इनके अंदर पाई जाती है, अलामत वो निशानी पाई जाती है। मोहरे नबूवत की पीठ में आखिरी नबी है, यही क्या मालिक के दो जहां है, यही सरदार दो जहां है, यही इमामुल अंबिया है, यही नबी आखिर ज़मा है, सारे नबियों के सरदार यही है। हमारी किताब में जो निशानी है वो निशानी इनके अंदर पाई जाती है। बोहेरा राहिब ने क्या खाना खिलाया, गिफ्ट यानी तोहफा दिया, इनाम दिया, और कान में कहा इस बच्चे को यहूदी से बचा के रखना। क्यों? इसलिए कि यहूदी कौम इस बच्चे की दुश्मन है। और आज यहूदी में समझे, कुरान पाक के भी पढ़ना, आज यहूदी इस्लाम के दुश्मन क्यों है? बोला है ना, देखते हो ना, कारण क्या है कि जितने अंबिया किराम आए यहूदी में, बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल कुरान में है, कभी पढ़ते हो है ना, तो सबके सब बनी इसराइल में है, सारे के सारे बनी इसराइल से आए, सारे नबी बनी इसराइल से आए। और मेरे आका बनी इसराइल से नहीं, कौम बनी इसराइल से नहीं, औलाद याकूब से नहीं, बल्कि मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातो तस्लीम के औलाद में से, खानदाने कुरैश से। किसे? खानदाने कुरैश से। यही से दुश्मनी फैली। और लोगों ने जो है तौरेत में देखा तो सारी चीजें लिखी हुई थी, सारी बातें लिखी हुई थी तौरेत में। अबू तालिब भतीजा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है औने पौने माल बेचते हैं और लेके मक्का मुकर्रमा आते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जिंदगी कैसे गुजरी अल्लाह पर कबीरा। उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है चाहे 12 साल हो या 25 साल हो या 40 साल तो मक्के में जो जिंदगी गुजारी है उस जिंदगी की मिसाल नहीं है। उनसे बढ़कर कोई सच्चा पक्का नहीं था, उनसे बढ़कर कोई अमानतदार नहीं था, उनसे बढ़कर कोई हयादार नहीं था, उनसे बढ़कर कोई सादिकुलवाद नहीं था, उनसे बढ़कर क्या सोसाइटी में, उस मुआशरे में, आलम में, अरब में सच्चा पक्का इंसान नहीं था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दयानतदार नहीं था। यानी पूरे मक्के में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमीन कहे जाते थे, लोग अमीन कह करके बुलाते थे। और अमीन किसे कहते हैं मालूम है? कि जिसके पास कोई अमानत रखो, खयानत ना करे। और आज मुसलमानों का हाल क्या है? किसी के पास अगर आप 5-10 हजार रुपए कुछ भी अमानत रखो, है ना, जगह जमीन कुछ भी रखो, वो लेकर बैठ जाएंगे। हाजी वाजी को खड्डी बदमारी है, मुसलमानों खा लिए। पूरे मक्के के लोग मेरे आका को अमीन कहते थे। क्या कहते थे बोलो? अमीन कहते थे कि पूरे आलम अरब में इससे बढ़कर दयानतदार, अमानतदार कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। क्यों मालूम है? एक मुबल्लिग, एक दाई, एक हादी समाज और मुआशरे में रहता है और उनको मालूम है कि समाज को सुधारना है, उनको मालूम है कि समाज को पटरी पे लाना है, उनको मालूम है कि लोगों को पटरी पे लाना है। तो वो दाई पहले खुद अमल करते हैं। क्या करते हैं बोलो? अमल करते हैं। बोलो क्या करते हैं? अमल कर, खुद अमल करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमल कर रहे हैं।
खुद प्यासों को पानी पिला रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, बेवा मिस्कीन है उनके आंसू को पूछते हैं, गरीब को सीने से लगा रहे हैं, यतीम लाचार को सीने से लगा रहे हैं, सबसे प्यार से पेश आते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, छोटों के साथ शफकत से पेश आते हैं। अभी जाने मिल्लत इस्लामी क्यों? इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालूम था इस कौम का दाई कोई और नहीं है, इस कौम का हादी कोई और नहीं है, इस कौम का मुबल्लिग कोई और नहीं है। मैं ही मुबल्लिग बनने वाला हूँ, मैं ही दाई बनने वाला हूँ, मैं ही दावत देने वाला हूँ। ये कौम हमारी जो है हमारी पिछली जिंदगी पर नजर डालेगी, पिछली जिंदगी पर गौर करेगी कि इन्होंने जो है पहले क्या किया था। बोलता है कि नहीं 900 चूहा खा के चली बिल्ली हज को बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है समाज में रहे हैं, मगर समाज को अपनी तारीफ करने पर मेरे आका ने मजबूर कर दिया है। तो हमको आपको कैसे रहना चाहिए? बोलो, मेरी बात समझ रहे हो ना? कैसे रहना चाहिए? सच्चा पक्का बन के रहना चाहिए या धोखा फरेब देना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? बोलो, नबी ने तो ही तालीम दी है। और इसी अमानतदार समझे सरकार की अमानतदारी को देखकर मेरे आका अमानतदार थे, अमीन थे, बहुत सच्चे पक्के थे। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो मक्के के रईस खुवैलिद की बेटी थी, और खुवैलिद जो है मक्के का रईस इंसान था, पैसे वाला दौलत वाला इंसान था। तो बाप दौलत का अगर बाप दौलत वाला होगा तो बेटी भी तो दौलत वाली होगी, बोले होगी कि नहीं होगी? तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस जमाने में दौलत वाली क्या खातून कहलाती थी, पैसे वाली खातून कहलाती थी, पैसे वाली औरत कहलाती थी। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत को देखकर, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदाकत को देखकर, उनकी सच्चाई को देखकर मेरे आका को पैगाम भेजा कि पैसा मेरा और जाइए तिजारत कीजिए मुल्क के शाम जाकर के। सुभान अल्लाह। जो मुनाफा आएगा 50-50 बांट लेंगे। तो गोया कि अपने माल का अमीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाया, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपने गुलाम मैसरा को लगा दिया, ये इनके साथ तुम भी मुल्क शाम जाओ तिजारत करने के लिए। ये दोनों जा रहे हैं मुल्क शाम तिजारत के लिए। और बसरा के बाजार में मेरे आका ने डेरा डाल दिया, और बसरा के बाजार के करीब में एक राहिब का है, राहिब समझते हैं? नहीं, राहिब समझते हो? वो जैसे ना यहूदी धर्म के जो सबसे बड़े क्या होते हैं? बोले गुरु, उस्ताद, मखदूम, उनका रहनुमा, उनका लीडर, उनका पीर कह लो, समझे नहीं? उसको राहिब कहते हैं। राहिब की खानका थी, उनकी झोपड़ी थी, उनका वही अरीसा था। और मेरा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब 25 साल की उम्र है, कैसे साल की उम्र बोलो? 25 साल की उम्र है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम की मंडी में गए। मेरे आका 25 साल की उम्र शरीफ है, माल लेके गए। और जब माल लेके गए और इधर जो है ये देख भी रहे हैं सारी कैफियत। कौन? हजरत मैसरा जो गुलाम था हजरत खदीजतुल कुबरा का, उन्होंने लगा दिया था कि देखना इनके क्या है, इनके चरित्र को देखना, इनके गुस्तारो रफ्तार को देखना, इनके चलने को देखना, और सब आकर के मुझे बताना। वो देख भी रहे थे। और मेरे आका जब उस मंडी में गए और पादरी जिनका नाम नस्तूरा पादरी था, उन्होंने मेरे आका के हुस्न जमाल को देखा तो फौरन करीब आया। सुभान अल्लाह। और मैसरा पहले भी तिजारत करने के लिए जा रहा था, जान पहचान थी। बुला गुलाम को, कहा ये तुम्हारे साथ 25 साल नौजवान कौन है कि जिनके चेहरे से जो है नूर का तकद्दुस टपक रहा है, जिनके चेहरे से रब का जलवा नजर आता है, चेहरा ऐसा है कि जलवे इलाही नजर आता है, ऐसा खूबसूरत इंसान, ऐसा हसीन जमील इंसान तुम्हारे साथ कौन है? तो उन्होंने कहा खानदान कुरैश का रहने वाला, कहा खानदान कुरैश का है और हाशमी घराने का एक पर्व है। अल्लाह अकबर कबीरा। नस्तूरा राहिब ने इतना सुना, फिर फौरन कहने लगा कि इनकी हिफाजत करना और इनको हिफाजत के साथ मक्का मुकर्रमा लेके जाओ। कहा क्यों? कहा यही वो आखिरी नबी है, इसलिए कि आखिरी नबी की जितनी अलामतें, जितनी निशानियां हमारी किताब में है, ये सारी
निशानियां 25 साल नौजवान के अंदर पाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी निशानियां पाई जाती हैं, सारी अलामतें पाई जाती है। और ये कौम यहूदी इनके दुश्मन है, इसलिए हिफाजत के साथ मक्का मुकर्रमा लेके जाओ। माल बेचते हैं औने पौने, और दोनों मेरा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और वो गुलाम भी दोनों के दोनों जो है मक्का के लिए रवाना होते हैं। और जब मक्का के करीब पहुंचे, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाला खाना के पास बैठकर, खिड़की के पास बैठकर इंतजार कर रही थी कि देखे क्या है ये मक्के का नौजवान, 25 साल नौजवान मोहम्मद कब का है, माल तिजारत का माल बेचकर कब वापस आएगा, मेरा गुलाम कब वापस आएगा। बाला खाने के पास खिड़की के पास बैठ के क्या देख रही थी। अल्लाह पर कबीरा, उन्हें क्या देखा जब मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गुलाम मैसरा के साथ उनके घर के करीब आए, तो उन्हें क्या देखा, दो फरिश्ते धूप की हालत में मेरे आका पर साया किए हुए हैं। का दो फरिश्ते साया किए हुए हैं। जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये मंजर देखा, ये कैफियत देखी, दिल भर गया। अल्लाह पर कबीरा बेपनाह मोहब्बत सरकार से हो गई। और क्या रईस की बेटी और खुद रईस पैसे वाली थी। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चाहत दिल में पैदा हो गई, ख्वाहिश पैदा हुई। हालांकि दो बार उनका निकाह हुआ, दोनों शौहर इंतकाल कर गए। उन्होंने ठान लिया था तीसरा निकाह नहीं करूंगी, तीसरी शादी नहीं करूंगी। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब ये कैफियत देखी और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदाकत देखी, अमानतदारी देखी, फौरन चाहत पैदा हो गई और अपनी तरफ से आका के यहाँ निकाह का पैगाम उसने भेज दिया। अपनी तरफ से भेज दिया है। मक्के की रईस थी, पैसे वाली थी, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म देखकर, उनकी सच्चाई देखकर, उनकी अमानतदारी देखकर, उनका तकवा देखकर, उनकी परहेजगारी देखकर, उनकी सोच और फिक्र देखकर फौरन भी वो क्या है दीवानी हो जाती है, लुत्फ हो जाती है। दिल में सरकार की मोहब्बत की चाहत बढ़ जाती है। जाने मिल्लत इस्लामिया पैगाम भेजते मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत अमीर हमजा जो सरकार के चचा थे, हजरत अब्बास जो सरकार के चचा थे, अबू तालिब सबको इकट्ठा किए। फिर ये पैगाम उन सबके बीच में रखा गया। सबने इस पैगाम को एक्सेप्ट किया, कहा ठीक है पैगाम का कबूल है। अब जरा गौर करो दीदाने मिल्लत इस्लामिया, अयूब भाई 25 साल मेरे आका की उम्र है। उम्र शरीफ कितनी है बोलो? 25 साल। और हजरत खदीजा की उम्र शरीफ 40 साल। एक बेवा, क्या है? बेवा। और नबी कौनैन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जवानी का ये हाल था कि उस जमाने की क्या है हसीन और जमील औरतें अपने आप को नबी कौनैन पर निछावर करने के लिए तैयार थी। बड़े बड़े पैसे वाले की बेटी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग मेरे आका को जो है अपना दामाद बनाने के लिए तैयार थे। क्यों? इसलिए कि 25 साल मेरे आका ने उस मुआशरे में जो जिंदगी जिंदगी गुजारी, गोया के उस मुआशरे में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सच्चा मुबल्लिग बनकर, एक सच्चा दाई बनकर, एक क्या पक्का हादी बनकर के जिंदगी गुजारी है कि उनकी जिंदगी में मक्के के किसी ने कोई कमी नहीं निकाल सकी। तो फिर क्यों नहीं चाहेगा? चाहेगा कि नहीं चाहेगा? सब कुछ चाहेगा। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पैगाम को कबूल कर लेते हैं। 25 साल नौजवान है, बोलो 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से निकाह करने के लिए तैयार होगा? बोलो होगा? नहीं। आज तो बेवा से कोई निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बेवा से निकाह करके जो है दुनिया वालों को मैसेज दिया है, पैगाम दिया है। क्या दिया है? मैसेज ये दिया है कि किसी बेवा को जो है आंसू बहाने के लिए ना छोड़ देना, बल्कि उनको शरीक हयात बना लेना। रब राजी हो जाएगा, रब राजी हो जाएगा। मेरे आका के निकाह में निकाह हुआ, अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, खुतबा पढ़ा, निकाह पढ़ाया गया, या वो कबूल हुआ। और जब निकाह में खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आती है, अब जुमला सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी कौनैन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज करती है कि जितना माल मेरा है, जितनी दौलत मेरी है, जितने दिरहम दीनार मेरे पास है, जितने पैसे मेरे पास है, आज से इन सारी दौलत का मालिक आप हो। सुभान अल्लाह। बोले माँ, हमारी माँ बहने बैठी है, बोलो कभी अपने खाविन को मालिक बनाओगे अपने शौहर को? तो आज तेरे मेरे की बात है, इमारू से तमारू नहीं हमें है वापरता नहीं। हाँ याद रखो, इमारू से। अरे हमारा पापा है, दीदू है,
बोले है कि नहीं है? आज ही होता है। मगर कुर्बान जाओ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर। उन्होंने कहा सारा माल, सारी दौलत, सारे दिरहम दिनार, सारे रुपए पैसे ये आपके हैं, आप जहां चाहो लगाओ। सुभान अल्लाह, जहां चाहो लगाओ, जिसे चाहो दो। मेरे आका को जो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या किया? मालिक बना दिया। उन्होंने मालिक बना दिया सरकार को, अपने माल का, अपनी मिल्कियत का, अपनी दौलत का मालिक बना दिया। मेरी माँ बहनों, इससे भी कहा हम आपका सबक हासिल करो, इससे सबक हासिल करना चाहिए कि शौहर की खिदमत के लिए बीवी का किरदार माल के एतबार से भी होना चाहिए। अगर शौहर गरीब हो, तंगदस्ती में हो, और तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो, या तुम्हारे खाते में पैसे हो, या तुम्हारे पास पैसे हो, तो ये मत कहना कि ये मेरा है, बल्कि ये कहना ये मेरा शौहर है, सारे पैसे के ये मालिक हैं। मगर आज क्या, अगर शौहर बेचारा गरीब हो जाए ना, थैला उठाती है चली जाती है। बोला हाची बाती की खोटी बात अमजद भाई, हैं? चली जाती है। और इमाम अंबिया की बेटी को देखो, 3 दिन से फाका चल रहा है। कितने दिन से? 3 दिन से फाका, हांडी नहीं चढ़ी है, खाना नहीं बना है। बेटी किनकी थी? रसूल कौन की? हुजूर की बेटी थी। मौला कायनात के निकाह में 3 दिन से फाके है, 3 दिन से फाके कर रही है, 3 दिन से खाना नहीं बना है, हांडी नहीं चढ़ी है। आज की अगर बेटी होती, आज की बेटी होती, लात मार के चली जाती। बोले है या नहीं? चली जाती। आज अगर शौहर के अंदर थोड़ी सी गरीबी आ जाए, थोड़ी सी गुर्बत आ जाए, थैला उठा के हमारी माँ बहनें चली जाती है। बोले है कि नहीं है? मेरी माँ बहनों, निकाह का मतलब ये नहीं है, निकाह का मतलब ये है कि मियाँ बीबी मिलकर पूरी जिंदगी खुलूस और मिल्लायत के साथ गुजारो, मोहब्बत के साथ गुजारो। निकाह का मतलब ये है। माल के खातिर निकाह नहीं हुआ है, दौलत के खातिर निकाह नहीं हुआ है। बोले माल से निकाह हुआ है, दौलत से निकाह हुआ है, बोलो सल्तनत से, दिरहम दिनार के रुपए पैसे देने। निकाह जिस इंसान से हुआ है, उन इंसान की दोस्ती को निभाओ, उस इंसान की दोस्ती को निभाओ, इसी का नाम इस्लाम है। 3 दिन से पाके, 3 दिन के फाके हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कमजोर हो गई। मेरे आका ने जब अपनी शहजादी को देखा, कमजोरी की हालत में है, ज़ोफ़कारी है, अल्लाह पर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते, बता बेटी क्या हुआ? मगर खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हया देखो, अपने बाप से अपने घर की कहानी बयान करने के लिए तैयार नहीं हुई। और आज तो फोन पे चालू हो जाता है, मम्मी आज ये बकाला नहीं लाए, मम्मी आज ये अच्छा खाना नहीं लाए, मम्मी आज इन्होंने हमें पैसा नहीं दिया। बोलो होता है कि नहीं होता है? मेरा आका पूछ रहे, बेटी बता क्या हाल है, क्यों कमजोर हो गई, क्यों जोफ आ गया, क्यों निकाहत आ गई? फौरन कहा का अब्बा हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, यूं ही थोड़ी सी कमजोरी आ गई है। मतलब ये कि अपने घर की शिकायत कहा नहीं करती है, ये नहीं कहती है कि मौला अली ने कुछ लाया नहीं है, ये नहीं कहती है कि अली ने कुछ लाया नहीं है, या अली के घर में रोटी का टुकड़ा नहीं है, या अली के घर में खाने की कोई चीज नहीं है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई शिकायत रसूल कौनैन से नहीं करती है। ये नहीं कहती है आपने मेरा निकाह किसके साथ कर दिया है, किस गरीब के साथ कर दिया है, किस कंगाल के साथ कर दिया है, किस क्या मुफलिस के साथ कर दिया है, कि जिनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं है, एक वक्त का खाना नहीं है। रसूल कौनैन की बेटी फरियाद नहीं करती है, शिकवा नहीं करती है, बल्कि क्या है, उसको छुपा रही है, उस गुर्बत को छुपा रही है, उस गुर्बत पर पर्दा डाल रही है, बाप से शिकायत नहीं करती है। मेरी माँ बहनों, आज इस रिवाज से तुम भी सबक हासिल करो। कभी अपने शौहर की गुर्बत की शिकायत माँ से ना करना, बाप से ना करना, शौहर की तंगदस्ती की शिकायत जो है अपने परिवार से ना करना, बल्कि कोशिश ये करना इसी गुर्बत की हालत में, इसी संग, इनकी संगत में, इनकी रिफाकत में, इनके साथ जिंदगी निकाल के दुनिया से चली जाओ। ये पल्ले बांध लेना। आज तो बाद में शिकायत होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है? हाँ मेरी माँ बहनों, आप भी तकरीर से कहा अपने अमाल की सलाह करो, एक सोच पैदा करो। शौहर कोई खिलौना नहीं है, खाविन कोई खिलौना नहीं है, समझते ना? आवाज जा रही है ना मेरी? घबराओ नहीं यार, मैं 5 घंटा ऐसे बोल सकता हूँ, टेंशन काहे लेते हो? हाँ आपसे कोई शिकायत नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाविन कोई, शौहर कोई खिलौना नहीं है। एक हदीस से पाक कोट करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ।
दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका। थोड़ी सी इस्लाह भी होनी चाहिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह मकाशिफुल कुलूब में हदीस पाक नकल फरमाते हैं। माँ बहनों, ये हदीस पाक आपके लिए मैसेज है, आप इस पर गौर करना। फरमाते हैं खाविन के पैर के नाखून से लेके सर की चोटी तक जख्म हो, घाव हो और पीप बह निकले। क्या बह निकले बोलो? पीप। पीप तो समझते हो ना, मवाद। वो मवाद के बाद नहीं, घाव दबाते हो तो गंदा मवाद निकलता है। हाँ, वो कहा निकले पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, या सिर्फ हाथ में नहीं, या सिर्फ चेहरे में नहीं, या सिर्फ क्या पेट में या पीठ में नहीं, बल्कि पूरे शरीर से पीप बह निकले। और उनकी बीवी अपनी जबान निकाल कर सारे पीप को चाट ले। आका फरमाते हैं तब भी शौहर का हक अदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बोलो, जबान लगा कर चाट ले। और सुनो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ बाप के कदमों तले नहीं है। समझे? जिनका निकाह हो गया है, समझ में बात आ रही नहीं? मेरी माँ बहनों, जिनका निकाह हो गया है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे नहीं, माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं, फरमाबरदारी में नहीं मेरे, बल्कि जिनके नाम पर यहां बैठे हो, 12 रबीउल नूर शरीफ में अंजुमन मनाते हो, बद मनाते हो, वाका फरमाते हैं दुनिया की औरतों सुन लो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शौहर की रजामंदी में है, तुम्हारे धनी की रजामंदी में है, तुम्हारे खाविन की रजामंदी में है। इसलिए अपने शौहर को अपने कहा खाविन को राजी करो। मेरे आका फरमाते हैं कामयाब है वो औरत, सुन रहे हो, कामयाब है वो औरत, आका फरमाते हैं जिसने अपने शौहर को राजी करके दुनिया से गई। जो अपने शौहर को राजी करके दुनिया से गई वो औरत कामयाब है। हम नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिनके खातिर ये दुनिया बनी है, जिनके खातिर ये कायनात बनी है, जिनके खातिर ये उजाले हैं, जिनके खातिर रब ने अपनी रबूबियत को जाहिर फरमाया, वो नबी फरमाते हैं कामयाब वो औरत है। जो कहे फलाह बेबूद को वो औरत पहुंच गई जिसने अपने शौहर को राजी किया और दुनिया से चली गई, वो कामयाब औरत है। अपने शौहर को राजी करो। और शौहरों, आप भी सुनो, ये तुम्हारी बीवियां तुम्हारी बांदी नहीं है, कनीज नहीं है, समझे? तुम्हारी जिंदगी के साथी है। बोलो है या नहीं है? तुम्हारी जिंदगी के साथी है। उनके साथ व्यवहार गलत मत करना, मारना मत, गाली मत देना और बात बात पर कोसना मत, उनके माँ बाप को गाली ना देना, बल्कि मोहब्बत के साथ रखना। औरत मोहब्बत चाहती है, मोहब्बत के साथ रखना और उसे समझाने की कोशिश करना। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं मर्द औरत ये गाड़ी के दो पहिए हैं। क्या है बोलो अयूब भाई? गाड़ी के दो पहिए हैं, और एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी चलेगी? चलेगी? हम जब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गाड़ी के दो पहिए हैं, तो गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहिया की जरूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन औरतों को क्यों पैदा फरमाया? कारण क्या है? मेरे दोस्त उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जन्नत में रखा गया तो जन्नत की तन्हाई महसूस करने लगे, अकेलापन महसूस करने लगे, दहशत में खो गए, तन्हाई महसूस करने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस तन्हाई को दूर करने के लिए, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए, आदम अलैहिस्सलाम के सीने में सुकून पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। तो एक औरत अपने शौहर को सुकून फराहम करती है, वो करती है कि नहीं करती है? इसलिए प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से रहो। मैं तकरीर में कहा करता हूँ, आज जो कोर्ट में जो 3 तलाक का मामला गया है ना, ये हमारी कमी है। हम बाद में जो है झटके में तलाक दे देते हैं। बोलो है कि नहीं मेरे दोस्त? तलाक यूज ना करना। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, आपका टाइम हो गया। आखिरी जुमला दे रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर खरकानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी जो है बहुत नालायक थी। क्या थी बोलो? नालायक थी। बाद में जो है हजरत अबू बकर खरकानी को कोसा करती थी, उल्टी सीधी बातें किया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, उल्टी सीधी बातें किया करती थी, समझे? तो किसी ने उनको कहा कि हजरत आपकी बीवी बहुत नालायक है, आपको जो है उल्टी सीधी बातें करती है, आपसे है ना गाली गलौज करती है, आप उनको तलाक क्यों नहीं दे देते हैं? आप उनको कहा अपने निकाह से निकाल दीजिए, तलाक दे दीजिए, आपने उनको रखा क्यों है?
रखने की वजह क्या, कहाँ रखा है? तो गाली दे रही है, आपकी तौहीन कर रही है, आपके शान को घटा रही है, आपके मुरीदों से उल्टी सीधी बात कर रही है। अब जैसे मुरीद कोई आया पीर की बारगाह में तो कहेगा कहाँ गए हमारे पीर साहब? आप अंदर से कह रहे थे उस मक्कार की बात कर रहे हो। बोलो मुरीद को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो किसी ने कहा कि इस तरह से बात करती है हजरत, आप तलाक क्यों नहीं दे देते? तलाक दे दीजिए, हटाइए उसको अपने निकाह से। फरमाते हैं क्या तलाक देकर अल्लाह के गजब को मोल लूं? सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। जब बंदा तलाक देता है गोया कि वो अल्लाह के कहर को, अल्लाह के गजब को खरीदता है। इसीलिए तलाक पर आमदा मत होना, उसे समझाना, ना माने तो उनके माँ बाप के यहाँ छोड़ाना, तलाक मत देना, कभी भी जबान में तलाक का लफ्ज लाना ना लाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम, उनका मनसब, उनका मर्तबा, और सुनो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम, मनसब, मर्तबा इंसानी समझ से वरौम वरा है। इंसानी समझ से बोलो वरौम वरा है। इंसानी समझ सरकार के मकाम मनसब को नहीं समझता। पहले कल भी कहा था तो मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर से कहा मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं। तो नबी का मकाम बहुत बुलंद वाला है। इंशाअल्लाह माँ बक़िया मज़मून जहाँ पे छोड़ा हूँ कल पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको आमाल खैर की तौफीक दे। और हमारी दुआ है जितने लोग हाजिर आए हैं इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए, फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर शुलमा मिल्लती शुहदाए महब्बती अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।